हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई एंड सभी न्यू कमर्स के लिए अ वेरी वेरी ग्रैंड एंड हैप्पी वेलकम. सो वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई एंड आज वील कंटिन्यू विथ आवर कोर्स ऑफ लॉजिक. देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दूँ दैट नाउ मतलब आई हैव ऑलरेडी completed chapter 1 of our discipline logic, subject philosophy, college first year, first semester, and we are doing it from the book Introduction to Logic by Irving Kopy. So ऐसे तो book wise this should be our fifth chapter, but according to our syllabus हमारे chapter 2, 3, 4 नहीं है, chapter 5 पर हम लोग आ गए हैं. So it's a very easy chapter, बहुत ही अच्छा quick chapter, बहुत easily हो जाएगा. कुछ भी ऐसा difficult concept नया है but बहुत easy है and बहुत ही interesting भी है. ठीक है. Now we have already learnt about deduction, induction, validity, truth, and all this in chapter 1. So we turn now to the analysis of the structure of arguments. We have dealt mainly with the language in which arguments are formulated. In this chapter we explore and explain the relations between the premises of an argument and its conclusion. This section of the chapter is devoted to deductive arguments. A deductive argument is one whose premises are claimed to provide conclusive grounds for the truth of its conclusion. If that claim is correct, that is, if the premises of the argument really do assure the truth of its conclusion with necessity, that deductive argument is valid. Every deductive argument either does what it claims or it does not. Therefore, every deductive argument is either valid or invalid. If it is valid, it is impossible for its premises to be true without its conclusion also being true. तो ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, गो टू माई चैनल डीमिस्टिफाई एंड वहाँ पर जाकर आप चैप्टर 1 बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का वीडियो वॉच कर सकते हैं. The theory of deduction aims to explain the relations of premises and conclusion in valid arguments. It also claims to provide techniques for the appraisal of deductive arguments, that is, for discriminating between valid and invalid deductions. To accomplish this, two large bodies of theory have been developed. The first is called classical logic or Aristotelian logic, after the Greek philosopher who initiated the study. The second is called modern logic or modern symbolic logic, developed mainly during the 19th and 20th century. The classical logic is the topic of this chapter. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया था व्हाट इज़ एरिस्टोटलियन लॉजिक, व्हाट इज़ मॉडर्न लॉजिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज. डिफरेंस सिर्फ इतना है उनके तरीकों में. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका गोल सेम है, बस तरीका मेथड इज डिफरेंट. ओके, सो यहाँ पर एरिस्टोटल की थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है विच यू कैन रीड इट्स थ्योरी. अब हम आते हैं क्लासेस एंड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस. Classical logic deals mainly with arguments based on the relations of classes of objects to one another. By a class, we mean a collection of all objects that have some specified characteristic in common. Everyone can see immediately that two classes can be related in at least the following three ways. तो जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास इज नथिंग, हम बोल रहे वेल्स, मैमल्स, ह्यूमंस, विंग्स, ये सब जो है वो क्लासेस है. तीन तरीके होते हैं जिसमें हम classes देख सकते हैं. First is all of one class may be included in all of another class. Thus the class of all dogs is wholly included or wholly contained in the class of all mammals. That means all dogs are mammals. अगर हमारा proposition ये है, that means पूरे के पूरे dogs का class is included in the class of the mammals. Second हो सकता है some but not all of the members of one class may be included in another class. Thus the class of all athletes is partially included or partially contained in the class of all females. या फिर एक और easy example दूँ, some students are girls. ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स का पूरा क्लास है, उसमें से कुछ जो है मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स होते हैं. सो सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स. थर्ड यहाँ पर है two classes may have no members in common. Thus the class of all triangles and the class of all circles may be said to exclude one another. इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. No squares are rectangles, या फिर no chairs are tables. ओके, या फिर एक और हम कह सकते हैं no fishes are mammals. Okay, these three relations may be applied to classes or categories of every sort. In a deductive argument, we present propositions that state the relations between one category and some other category. The propositions with which such arguments are formulated are therefore called categorical propositions.
Categorical propositions are the fundamental elements, the building blocks of argument in the classical account of deductive logic. जैसे कि no the athletes are vegetarians, all football players are athletes, therefore no football players are vegetarians. तो क्लास हम समझ गए, ये एथलीट्स, वेजिटेरियंस, फुटबॉल प्लेयर्स, ये सब क्लासेस हैं. Categorical proposition, a proposition that can be analyzed as being about classes or categories, affirming or denying that one class S is included in some other class B in whole or in part. That means basically हम यही कि सारे proposition जो है वो categorical यहाँ पे propositions की ही बात हम करेंगे. And ये चीज़ please do remember कि हम जितनी भी बात कर रहे हैं everything is about deductive argument. Inductive argument का chapter is over now. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स का सिर्फ हमने ये पढ़ा कि द कंक्लूजन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड और कैन नॉट बी कंक्लूसिवली कन्फर्ड फ्रॉम द प्रीमाइसेस, एंड सेकेंडली उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से जो प्रोबेबिलिटी है आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन की वो वीक या स्ट्रॉन्ग हो सकती है, नथिंग एल्स. दिस मतलब बस इतना हम पढ़ेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का, एंड खत्म. हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में वो कवर कर लिया है. यहाँ पर this argument contains 3 categorical propositions. We may dispute the truth of its premise, of course, but the relations of the classes expressed in these propositions yield an argument that is certainly valid. If those premises are true, that conclusion must be true. It is plain that each of the premises is indeed categorical, that is, each premise affirms or denies that some class S is included in some other class B in whole or in part. In this illustrative argument, the 3 categorical propositions are about the class of all athletes, the class of all vegetarians, and the class of all football players. Simple, उसमें कुछ समझने का नहीं है. बेसिकली बात कर रहे हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मतलब जिसमें हम कैटेगरीज या क्लासेस की बात कर रहे हैं. The critical first step in developing a theory of deduction based on classes, therefore, is to identify the kinds of categorical propositions. अब there are 4 kinds of categorical propositions which are very easy. बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा. The 4 and only 4 kinds of standard form categorical propositions, and ये है A, E, I, O. A proposition is all politicians are liars, which is universal affirmative proposition. E is no politicians are liars, which is universal negative propositions. The third is I, some politicians are liars, which are particular affirmative propositions. And the fourth is O proposition, which is some politicians are not liars, which is particular negative proposition. क्या है? Let's find out about them in detail. इसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं. Standard form categorical proposition, any categorical proposition of the form all SSP, no SSP, some SSP, or some S is not P, and they are respectively called as A, E, I, and O propositions. Venn diagram is iconic representation of a categorical proposition or of an argument used to display their logical forms by meaning of overlapping circle. तो ये जो Venn diagrams है ना, ये हमें बहुत आता है बहुत जगहों पर, लॉजिक में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमारा लॉजिकल वाला पार्ट होता है उसमें ये Venn diagrams का बहुत आता है. तो इट्स वेरी important to understand. What are universal affirmative propositions? देखिए जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एक तो यूनिवर्सल है, मतलब सभी के बारे में बात कर रहा है, जो भी चीज़ है वो सब है. एंड सेकेंडली अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है कि हाँ वो चीज़ उसमें है. In these we assert that the whole of one class is included or contained in another class. मतलब एक क्लास का पूरा के पूरा जो है वो दूसरे क्लास में है. जैसे कि मैंने आपको कहा if we talk about, जैसे कि यही all humans are mammals, तो सभी के सभी humans जो है वो mammals है. All politicians are liars is an example. It asserts that every member of one class, the class of politicians, is a member of another class, the class of liars. Any universal affirmative proposition can be written schematically as all SSP. This all SSP is known as the general schema of the standard form categorical proposition. तो जहाँ पर लेटर S और P जो है वो subject and predicate terms को represent करते हैं. Such a proposition affirms that the relation of class inclusion holds between the two classes and says that the inclusion is complete or universal. मतलब universal affirmative proposition बहुत simple है. Universal मतलब एक पूरा के पूरा क्लास दूसरी क्लास में है, include होता है. तो all members of S are said to be also members of P. Propositions in this standard form are called universal affirmative proposition, or they are also called A proposition. ये पूरा के पूरा, it is very important to learn everything. All SSP, universal affirmative propositions और A proposition. Okay, and बहुत easily हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती.
Categorical propositions are often represented with diagrams using two interlocking circles to stand for the two classes involved. These are called Venn diagrams, named after the English logician and mathematician John Venn, who invented them. Later, we will explore these diagrams more fully, and we will find that such diagrams are exceedingly helpful in appraising the validity of deductive arguments. For the present, we use these diagrams only to exhibit graphically the sense of each categorical proposition. तो अभी हम Venn diagrams को सिर्फ graphically या pictures के form में इन propositions को represent करने के लिए use कर रहे हैं. We label one circle for S for subject class and the other circle P for predicate class. The diagram for the A proposition, which asserts that all S is P, shows that the portion of S which is outside P shaded out, indicating that there are no members of S that are not members of P. So the A proposition is thus diagrammed as ऐसा, all S is P. अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लाइन करा हुआ है देखिए S में and P है. इसका मतलब ये है कि जब हम all SSP की बात कर रहे हैं, that means there is no मतलब member of S that is not a member of P, क्योंकि पूरा के पूरा S मतलब S क्लास के सभी members जो है वो P के members भी है. तो इसीलिए ये जो shaded part है ये indicate करता है कि S के सभी members जो है वो P के भी part है. इसी तरीके से अब हम सेकेंड प्रोपोजिशन पे आते हैं, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन. द सेकेंड एग्जाम्पल अबव, नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स, इज अ प्रोपोजिशन in which it is denied universally that any member of the class of politicians is a member of the class of liars. It asserts that the subject class S is wholly excluded from the predicate class P. Schematically, it is written as no S is P, where again S and P represent the subject and predicate terms. This kind of proposition denies the relation of inclusion between the two terms and denies it universally. It tells us that no members of S are members of P. Propositions in this standard form are called universal negative proposition, or they are also called E propositions. तो जैसे हमने A proposition पढ़ा जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब यूनिवर्सल मतलब S क्लास के सभी मेंबर्स P के मेंबर्स भी है. ऐसे यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब S क्लास के सभी मेंबर्स P के मेंबर नहीं है. ये यूनिवर्सली डिनाई कर रहा है कि S क्लास जो है सब्जेक्ट जो है उसका कोई भी मेंबर प्रेडिकेट का मेंबर नहीं होगा, प्रेडिकेट क्लास का. तो ये जो है यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो सेम है A और A की जैसे, बट क्वालिटी इज डिफरेंट क्योंकि वो अफर्म कर रहा है, ये डिनाई कर रहा है. The diagram for E proposition will exhibit this mutual exclusion by having the overlapping portion of the two circles representing classes S and P. So the E proposition is diagrammed ऐसे कि no S is P, S का कोई भी member P का member नहीं है. हमारा next है particular affirmative proposition. The third example above, some politicians are liars, affirms that some members of the class of all politicians are members of the class of all liars. But it does not affirm this of politicians universally. Only some particular politician or politicians are said to be liars. This proposition does not affirm or deny anything about the class of all politicians. It makes no pronouncements about that entire class. Nor does it say that some politicians are not liars, although in some contexts it may be taken to suggest that the literal and exact interpretation of this proposition is the assertion that the class of politicians and the class of liars have some members or members in common. That is what we understand this form or standard form proposition to mean. Some is an indefinite term. Does it mean at least one, at least two, or at least several? How many? Context might affect our understanding of the term as it is used in everyday speech, but logicians, for the sake of definiteness, interpret some to mean at least one. A particular affirmative proposition may be written as schematically as some SSP, which says that at least one member of the class designated by the subject term is also a member of the class designated by the predicate term P. The proposition affirms that relation of class inclusion holds but does not affirm it of the first class universally. It affirms it only partially, that is, it affirmed of some particular member or members. Proposition in this are called particular affirmative or I proposition. बहुत सिंपल है. यहाँ पर हम बोल रहे हैं सम एस इज पी. देखिए ऑल एस इज पी मतलब ऑल यूनिवर्सली ऑल एस इज पी, पूरा के पूरा एस जो है वो पी का पार्ट है. हमारा सेकंड हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव और ई प्रोपोजिशन विच इज नो एस एस पी मतलब एस का कोई भी मेंबर पी का पार्ट नहीं है. हमारा थर्ड हो गया सम एस एस पी मतलब कुछ, इसका नाम क्या है, थर्ड हमारा कौन सा हो गया,
पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब वो अफर्म तो कर रहा है कि हाँ एस के मेंबर्स पी के मेंबर भी है, लेकिन सभी के सभी नहीं है। सम मतलब कम से कम एक। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, अब सम का मतलब एटलीस्ट वन। जब हम लॉजिकली बात करते हैं ताकि लॉजिक में एक डेफिनेटनेस हो पाए, तो लॉजिशियंस ने सम का मतलब रखा है एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक मेंबर जो सब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करता है वो प्रेडिकेट क्लास को भी बिलोंग करता है। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर मतलब कुछ स्पेसिफिक, और अफर्मेटिव मतलब हाँ एस के कुछ मेंबर्स पी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो उनके जो नाम है ना प्रोपोजिशन के, वो ही उसका पूरा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब यूनिवर्सली ऑल एस इज पी, पूरा के पूरा एस जो है वो पी का पार्ट है। यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब नो एस इज पी, कोई भी एस का पार्ट पी का पार्ट नहीं है। एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब कुछ एस के मेंबर्स पी के मेंबर्स भी है, कुछ है मेंबर्स है, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव। अब यहाँ पर हम इसके डायग्राम देख लेते हैं। ये x डिनोट करता है कि s के कुछ मेंबर्स p के मेंबर्स भी है। अब हमारा फोर्थ आता है, द लास्ट वन इज पर्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन, मतलब सम s is not p. Here the fourth example, some politicians are not liars, like the third, does not refer to politicians universally but only to some member or members of that class. It is particular. Unlike the third example, however, it does not affirm the inclusion of some members. मतलब देखिए ये वाला जो है ना वो बहुत कुछ सेकंड थर्ड जैसा, ये वो बस डिफरेंस इतना है कि वो बोल रहा है पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब कुछ मेंबर्स एस के पी के मेंबर भी है। इसमें डिफरेंस इतना रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है पर्टिकुलर, हम सम एस की बात ही करें, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो सम एस इज नॉट पी, मतलब एस के कुछ मेंबर्स पी का पार्ट नहीं है। तो ये होता है, ये हमारे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आ गए। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये क्या है, सम एस एस पी, ऑल एस एस पी। देखिए एस और पी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक जनरल उसके लिए यूज कर रहे हैं। हम एस और पी की जगह क्लासेस, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ना, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, हमने ऊपर भी मतलब ऊपर नहीं सॉरी चैप्टर 1 में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। ऑल व्हेल्स आर मैमल्स, ऑल व्हेल्स हैव विंग्स। तो ये व्हेल्स एंड मैमल्स एंड विंग्स जो है वो एस एंड पी हो गए, अलग अलग हो गए। एंड ये देखिए इसका वेन डायग्राम, ओ प्रोपोजिशन जो है दैट इज पर्टिकुलर नेगेटिव, उसका वेन डायग्राम ये रहा। एस एक्स जो है वो बाहर है, इसका मतलब होता है कि एक्स जो जिस पार्ट को डिनोट कर रहा है वो पी का पार्ट नहीं है। ओके अब यहाँ पे जो हमने एस एंड पी यूज करा है वो सिंपली उन क्लासेस की जगह एक जनरल टर्म हमने यूज कर लिया है, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन आर पर्सन्स ऑफ ऑनर एंड इंटीग्रिटी हैज द फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि एक प्रोपोजिशन सिर्फ इतना सही हो सकता है कि ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर, नो पॉलिटिशियंस आर लायर, नो। यहाँ पे all candidates for the proposition are persons of honor and integrity. This is a proposition, this is a proposition, universal affirmative, और इसमें क्या क्या चीज़ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये सब हम लोग अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म क्या है, सब्जेक्ट टर्म इज पर्सन्स ऑफ ऑनर एंड इंटीग्रिटी, ये प्रेडिकेट टर्म है, एंड कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन इज सब्जेक्ट। Subject and predicate terms can become more intricate still, but in each of the 4 standard forms is relation is expressed between a subject and predicate class. हम ये लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी, कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, क्या है, सब हम लोग आगे अभी इस चैप्टर में देखेंगे। ये बस हमें अभी जानना है कि A, E, I, O, A यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल S is P, E यूनिवर्सल नेगेटिव, नो S is P, I particular affirmative, some S is P, and O particular negative, some S is not P. These are the building blocks of deductive arguments. This analysis of the categorical proposition appears to be simple and straightforward, but the discovery of the fundamental role of these propositions and the exhibition of their relations to one another was a great step in systematic development of logic. तो अभी हमें ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा स्टेप था लॉजिक में। It was one of Aristotle's permanent contributions to human knowledge. Its apparent simplicity is deceptive. On this foundation, classes of objects and the relations among those classes, logicians have erected over the course of centuries a highly sophisticated system for the analysis of deductive argument. This system, whose subtlety and penetration mark it as one of the greatest intellectual achievements, we now explore in the following 3 steps. तो अब हम ये समझ चुके हैं इसके बारे में बहुत कुछ कि this which was given by Aristotle
ये एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट था ह्यूमन इंटेलेक्चुअल के उसमें, क्योंकि ये अभी हम जब पढ़ रहे हैं इसको ये बहुत सिंपल लग रहा है कि AEIO यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन व्हेन इट वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये भले ही सिंपल है बट इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अब इन 3 स्टेप्स में हम देख लेते हैं। इन द रिमाइंडर ऑफ द चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, AEIO को और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, इन्फ्रेंसेस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे हम AEIO से ही बहुत कुछ डिडक्टिव रीजनिंग को समझ सकते हैं। इन दिस टेक्स्ट हम लोग सिलॉजिज्म्स को देखेंगे, द आर्ग्यूमेंट दैट आर कॉमनली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, हम लोग नेचर ऑफ सिलॉजिज्म समझेंगे, एंड दैट एवरी वैलिड सिलॉजिस्टिक फॉर्म इज यूनिकली कैरेक्टर, ये हम जो भी हैं ये हम सब लोग पढ़ेंगे। And we will develop powerful techniques for determining the validity or invalidity of syllogisms. And third, इस text में हम लोग syllogistic reasoning को language of argument in everyday life के साथ integrate करेंगे। तो हम उसको practical life के साथ integrate करेंगे। कुछ limitations है जो कि हम identify कर सकते हैं, but उसकी wide applicability जो है वो उसको demonstrate, मतलब उसमें limitations ज़रूर है लेकिन फिर भी हम उसको practical life में applicable कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बहुत widely उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइड है। ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, फॉर्म ऑल SSP, नेम एंड टाइप A यूनिवर्सल अफर्मेटिव, एग्जाम्पल ऑल लॉयर्स आर वेल्दी पीपल। नेक्स्ट इज नो SSP, E proposition यूनिवर्सल नेगेटिव, नो क्रिमिनल्स आर गुड सिटीजन्स। सम SSP, I proposition particular affirmative, some chemicals are poisons. Some S is not P, O proposition particular negative, some insects are not pests. अब यहाँ पर बहुत जल्दी से हम लोग ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओके? तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सम हिस्टोरियंस, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं ऊपर, ये देखिए। सम हिस्टोरियंस आर एक्सट्रीमली गिफ्टेड राइटर्स हुज वर्क्स रीड लाइक फर्स्ट रेट नॉवेल्स। अच्छा ठीक है, ओके, हमें इसको स्टार्ट करने से पहले ना वील हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने A, E, I एंड O को तो पढ़ लिया। अब इसमें एवरी स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, क्वालिटी क्या है, एन एट्रीब्यूट ऑफ एवरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिटरमिन्ड बाय वेदर द प्रोपोजिशन अफर्म्स और डिनाइज क्लास इंक्लूजन, दस एवरी वन इज ईदर यूनिवर्सल इन क्वालिटी और पर्टिकुलर इन क्वालिटी। बहुत सिंपल है। क्वालिटी इज every standard form categorical proposition either affirms or denies some class relation, as we have seen. If the proposition affirms some class inclusion, whether complete or partial, its quality is affirmative. So the A proposition all SSP and the I proposition some SSP are both affirmative in quality. The letter names A and I are thought to come from the Latin word affirmo, meaning I affirm. If the proposition denies class inclusion, whether complete or partial, its quality is negative. So the E proposition, no SSP, and the O proposition, some S is not P, are both negative in quality. The letter names E and O are thought to come from the Latin word nego, meaning I deny. Every categorical proposition has one quality or the other, affirmative or negative. बहुत simple है। हमने 4 पढ़े, ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इसमें से A एंड I जो है ये दोनों जो है वो अफर्मेटिव है, एंड E एंड O जो है ये दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि क्वालिटी मीन्स या तो वो अफर्म कर रहा है या डिनाई कर रहा है, या तो वो पूरा के पूरा उसका पार्ट है या थोड़ा पार्ट है या फिर पार्ट नहीं है। सिमिलरली क्वांटिटी, देखिए हम ये एक्सरसाइज इसलिए पहले नहीं कर रहे बिकॉज इस एक्सरसाइज से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। Quantity, every standard form categorical proposition has some class as its subject. If the proposition refers to all members, then its quantity is universal. So the A proposition all SSP and the E proposition no SSP are both universal in quantity. If the proposition refers only to some members of the class designated by subject term, that is its quantity is particular. So the I proposition some SSP and the O proposition some S is not P are both particular. तो देखिए, the quantity of a standard form is revealed by the word with which it begins, all, no or some. All and no indicate it is universal, some indicates it is particular. The word no serves also in the case E proposition to indicate its negative quality.
Because every standard form categorical proposition must be either affirmative or negative, must be either universal or particular. The four names uniquely describe them as universal affirmative, जिसमें इसकी quality और quantity दोनों पता चल रही है. Quality is affirmative, quantity is universal. A proposition. In the I proposition, particular affirmative, I proposition, particular affirmative, the quality is affirmative, the quantity is particular. In the E proposition, universal negative, the quantity is universal, quality is negative, and the particular negative one, O proposition, the quality is negative and the quantity is particular. अब हम देखते हैं what is the general schema of standard form categorical propositions. Quantity की पहले definition पढ़ लेते हैं. Attribute of every categorical proposition determined by whether the proposition refers to all members or only some members. Thus every categorical proposition is either universal in quality or particular in quantity. तो इधर यूनिवर्सल इन क्वांटिटी. अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहती हूँ. ये बुक में मैंने जो यहाँ क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि दस एवरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज इधर यूनिवर्सल इन क्वालिटी और पर्टिकुलर, ये गलत है. यहाँ पे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की जगह अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आना चाहिए. दिस इज अ मिस प्रिंट. सो मैंने भी उस वक्त पढ़ लिया एंड देन आई रियलाइज लेटर दैट इसकी डेफिनेशन दस एवरी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज इधर अफर्मेटिव इन क्वालिटी और नेगेटिव इन क्वालिटी होना चाहिए. अब जनरल स्कीमा हम देख लेते हैं फटाफट. देखिए बहुत एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. ऐसा आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये एक साथ इतना सारा पढ़ रहा है. एक ही चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना. ऑल SSP, उसकी ऑल जो है वो यूनिवर्सल है. S इज सब्जेक्ट, इज P, तो ये हो गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव. अब जनरल स्कीमा क्या होता है? Between the subject and predicate terms of every standard form categorical proposition occurs some form of the verb to be. This verb accompanied by not is in the case of the O proposition serves to connect the subject and predicate terms and is called copula. Writing the four propositions schematically as we did earlier, all SSP, some SSP, only the words is and is not appear, but depending on the context other forms of the verb to be may be appropriate. We may change the tense. For example, some Roman emperors were monsters, or some soldiers will not be heroes, or change to the plural form of the verb like some all squares are rectangles. In these examples, were, are, will not be serve as copulas. However, the general skeleton of a standard form categorical proposition always consists of just four parts. First, the quantifier, then the subject term, next the copula, and finally the predicate term. The schema may be written as quantifier, subject term, copula, predicate term. देखिए इसको समझना बहुत ईजी है. हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ऑल SSP, नो SSP, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं और इनको लिखने का हमेशा एक तरीका होता है. द तरीका इज, सबसे पहले आता है क्वांटिफायर. देखिए ऑल, नो, सम. ऑल SSP ऑल द क्वांटिफायर है. नो SSP नो क्वांटिफायर है. सम SSP सम क्वांटिफायर है. सम S इज नॉट P, अगेन सम यहाँ पर क्वांटिफायर है. नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट टर्म ऑल SSP. तो क्वांटिफायर मतलब ऑल, नो, सम के बाद हमेशा S आएगा. ऑल S, नो S, सम S, सम S. ठीक है. तो कोई भी हो, वो चाहे यूनिवर्सल नेगेटिव हो, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो, पर्टिकुलर नेगेटिव हो, पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो, उसका जनरल स्कीमा सेम रहेगा कि सबसे पहले आएगा क्वांटिफायर. क्वांटिफायर मतलब जो हमें क्वांटिटी बता रहा है कि जैसे ए प्रोपोजिशन क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव. तो ए प्रोपोजिशन इज ऑल SSP. इसमें सबसे पहले क्वांटिफायर हमें क्वांटिटी बता रहा है, ऑल दैट इज यूनिवर्सल. नेक्स्ट है S, फिर आता है इज. अब इज जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स को जोड़ रहा है. ऑल S इज P. तो जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स को जोड़ने का काम करे दैट इज नोन एज कॉपुला. Copula, any form of the verb to be that serves to connect the subject and predicate of term of a categorical proposition. तो to be के क्या हो सकते हैं? is, will, were, are. ये सभी जो है वो copula कहलाए जाएंगे. एंड इसके बाद आता है predicate term P. तो predicate term is always at the last. तो quantifier मतलब जो क्वांटिटी पता है, फिर सब्जेक्ट S, फिर कॉपुला इज, आर, वर एंड विल, एंड फिर उसके बाद प्रेडिकेट टर्म P. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना है. हम बात करते हैं ऑल SSP. तो इट इज़ यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन. ए प्रोपोजिशन, ऑल इज क्वांटिफायर, दैट मीन्स इट इज टेलिंग दैट द क्वांटिटी इज यूनिवर्सल.
एस इज सब्जेक्ट टर्म, कॉपुला इज एंड इज बता रहा है कि इट इज अफर्मेटिव इन क्वालिटी, एंड देन प्रेडिकेट टर्म पी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड वाला, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, नो एस इज पी, ऑल्सो कॉल्ड एज ई प्रोपोजिशन। यहाँ पे नो जो है वो हमें दो काम कर रहा है। इट इज अ क्वांटिफायर, मतलब नो यूनिवर्सली कोई भी हमें क्वांटिटी बता रहा है कि इट इज यूनिवर्सल, कोई भी एस का मेंबर पी का नहीं है। एंड सेकेंडली वो हमें क्वालिटी भी बता रहा है, बिकॉज नो है तो वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नो जो है वो क्वांटिफायर क्वांटिटी भी बता रहा है एंड क्वालिटी भी बता रहा है। देन नो एस इज पी, एस इज सब्जेक्ट, इज कॉपुला, एंड देन पी प्रेडिकेट। थर्ड हमारा आता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, दैट इज आई प्रोपोजिशन, दैट इज सम एस इज पी। सम जो है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी बता रहा है, तो इट इज अ क्वांटिफायर, देन एस एंड देन इज पी। नेक्स्ट हमारा आता है ओ प्रोपोजिशन, विच इज पर्टिकुलर नेगेटिव, सम एस इज नॉट पी। सम इज द क्वांटिफायर, क्योंकि वो हमें क्वांटिटी बता रहा है कि पर्टिकुलर है, सिर्फ कुछ है, स्पेसिफिक है। एस तो सब्जेक्ट हो गया, इज तो हमारा इज नॉट, यहाँ पे ओ प्रोपोजिशन में हमारा इज नॉट जो है वो कॉपुला हो गया, और नॉट जो है वो हमें क्वालिटी बता रहा है कि नॉट जो है वो क्वालिटी बता रहा है कि वो नेगेटिव है, एंड पी इज द प्रेडिकेट। तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो यस, लेट्स फर्स्ट डू द एक्सरसाइजेस, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। या ओके, लेट्स फिनिश डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में। ये वाला जो वीडियो इसमें पूरा हम ये खत्म कर लेते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है। देखिए, categorical propositions are regarded as being about classes. The classes of objects designated by the subject and predicate terms. We have seen that a proposition may refer to classes in different ways. It may refer to all members of a class or refer to only some members of that class. Thus, the proposition all senators are citizens refers to or is about all senators, but it does not refer to all citizens. That proposition does not affirm that every citizen is a senator, but it does not deny it either. Every A proposition is thus seen to refer to all members of the class designated by its subject term S, but does not refer to all members of the designated by its predicate term P. To characterize the ways in which terms can occur in categorical propositions, we introduce a technical term distribution. A proposition distributes a term if it refers to all members of the class designated by that term. In A, E, I, and O proposition, the terms are distributed vary as follows. बहुत सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब यही होता है कि अगर कोई प्रोपोजिशन में टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो उस क्लास के सभी मेंबर्स की बात कर रहा है। जैसे कि ए प्रोपोजिशन में ऑल सेनेटर्स आर सिटीजन्स, तो इसमें ऑल सेनेटर्स मतलब सेनेटर्स क्लास जो है वो ऑल है, उसकी टोटल कंप्लीट सभी के बारे में बात कर रहा है, तो सेनेटर्स टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब ऑल एसएसपी जो ए प्रोपोजिशन होता है, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन होता है, उस केस में द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट द प्रेडिकेट इज नॉट, क्योंकि जो प्रेडिकेट है हम उसको यूनिवर्सली बात नहीं कर रहे हैं, उसके सभी मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है जैसे ऑल सेनेटर्स आर सिटीजन्स, ठीक है, सभी सेनेटर्स जो है वो सिटीजन्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सिटीजन्स सेनेटर्स होंगे ही। जैसे अगर हम इसकी जगह मिनिस्टर्स की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें, तो ऑल पॉलिटिशियंस आर सिटीजन्स, ये है ही सही कि अगर किसी को इंडिया में मिनिस्टर बनना है, कोई पोजीशन पे आना है, तो उसको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। तो ऑल पॉलिटिशियंस या ऑल मिनिस्टर्स आर सिटीजन्स, ये बात ट्रू है, लेकिन ऑल सिटीजन्स आर नॉट मिनिस्टर्स। ये बात नहीं है कि सारे के सारे सिटीजन्स जो है वो जरूरी नहीं कि मिनिस्टर्स हो ही सही। तो इसीलिए हमेशा A proposition which is a universal affirmative proposition, उसमें the subject term is distributed, क्योंकि उसमें हमेशा subject term की universally बात करते हैं, subject term की सभी उसकी बात करते हैं, and the predicate is not distributed, क्योंकि predicate में हम सभी members की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं E proposition की, no athletes are vegetarians, इसमें the subject term athletes is distributed because the whole class of athletes is said to be excluded from the class. However, in asserting that the whole class of athletes is excluded from the class of vegetarians, it is also asserted that the whole class of vegetarians is excluded from the class of athletes. तो मतलब E proposition जो कि यूनिवर्सल नेगेटिव होते हैं, इसमें उसके दोनों सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? क्योंकि देखिए A proposition में तो
सब्जेक्ट तो है, जैसे ऑल मिनिस्टर्स आर सिटीजन्स, ये तो है ही सही कि सभी मिनिस्टर्स सिटीजन्स होते ही हैं, लेकिन ये नहीं है कि सभी सिटीजन्स मिनिस्टर्स होंगे। लेकिन जब हम ई प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, नो एथलीट्स आर वेजिटेरियंस, इसमें हम दोनों क्लासेस को यूनिवर्सली कर रहे हैं। कैसे यूनिवर्सली? कोई भी एथलीट वेजिटेरियन नहीं होता है, तो हम किसी भी एथलीट की बात नहीं कर रहे, सारे एथलीट्स एक्सक्लूड हो गए। एंड सिमिलरली नो वेजिटेरियंस आर एथलीट्स, मतलब कोई भी एथलीट वेजिटेरियन नहीं होता है, और अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो एथलीट नहीं है। मतलब सभी एथलीट्स वेजिटेरियन नहीं है और सभी वेजिटेरियंस एथलीट्स नहीं है। इसीलिए इसका सब्जेक्ट भी पूरे क्लास की बात कर रहा है और प्रेडिकेट भी पूरे क्लास की बात कर रहा है। ठीक है, तो या फिर इसका हम अगर एक और एग्जाम्पल दें, नो बर्ड्स आर डॉग्स, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है कि कोई भी बर्ड डॉग नहीं होगा और कोई भी डॉग बर्ड नहीं होगा। कोई भी बर्ड डॉग नहीं होगा, कोई भी डॉग बर्ड नहीं होगा। तो जब हम ई प्रोपोजिशन दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव या फिर नो एसएसपी की बात करते हैं, तो ऐसे केसेस में दोनों सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरी क्लास को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोपोजिशन आता है आई प्रोपोजिशन, सम सोल्जर्स आर कावर्ड्स। इसमें ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हम सोल्जर्स में भी सम की बात कर रहे हैं कि कुछ सोल्जर्स कावर्ड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कावर्ड्स सोल्जर्स होंगे, नो, कुछ सोल्जर्स है जो कावर्ड्स होंगे। तो इसमें दोनों सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी, दोनों में ही हम पूरे क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ ही ऐसे सोल्जर्स है जो कावर्ड्स हैं। ठीक है, या कुछ ही ऐसे कावर्ड्स होंगे जो सोल्जर्स भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हम कि सारे के सारे कावर्ड्स सोल्जर्स ही होंगे, सिर्फ कुछ सोल्जर्स कावर्ड्स होंगे और कुछ कावर्ड्स सोल्जर्स होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि सम सिटीजन्स आर जैसे कि सम सिटीजन्स आर हिंदूज, तो इंडिया के कुछ सिटीजन्स हिंदूज हो सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हिंदू सिटीजन्स होंगे, क्योंकि कुछ हिंदूज हो सकता है अमेरिका में रह रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम दोनों में से कोई भी क्लास, ना तो सब्जेक्ट की पूरी क्लास की बात कर रहे हैं और ना ही प्रेडिकेट की पूरे क्लास की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे ओ प्रोपोजिशन में सम हॉर्सेस आर नॉट थरोब्रेड्स, तो सिंपल है, ओ प्रोपोजिशन में सम तो हॉर्सेस मतलब सब्जेक्ट तो कुछ है, लेकिन प्रेडिकेट के पूरी क्लास की बात कर रहे हैं कि सम हॉर्सेस आर नॉट थरोब्रेड्स, मतलब कुछ हॉर्सेस थरोब्रेड्स नहीं है, तो कोई भी थरोब्रेड हॉर्स होगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि सम हिंदूज आर नॉट सिटीजन्स, तो हम कुछ हिंदूज की बात करें जो सिटीजन्स नहीं हैं, लेकिन सभी के सभी सिटीजन जरूरी नहीं है कि, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि नहीं, मतलब ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते, बट या इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट में हम कुछ की बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन प्रेडिकेट पूरे क्लास की बात कर रहे हैं। सम हॉर्सेज आर नॉट थरोब्रेड्स, तो कुछ हॉर्सेज ऐसे हैं जो थरोब्रेड्स नहीं है, लेकिन कोई भी थरोब्रेड हॉर्स नहीं होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि ओ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर नेगेटिव, उसमें सब्जेक्ट टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बट द प्रेडिकेट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका ये देख लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बहुत इजीली समझ लिया है। ये उसके वेन डायग्राम्स दिए हुए हैं, मतलब ये जो हमने अभी पढ़ा है AEIO प्रोपोजिशन, उसी का एक समरी विद वेन डायग्राम है। विजुअल लॉजिक, मतलब ये हमने पूरा जो पढ़ा है उसकी एक समरी है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। ओके, ये आप, मैं 1 मिनट के लिए कर लेती हूँ, आप पॉज कर सकते हो एंड इसको रीड कर सकते हो इफ यू वांट। तो इसमें हमने जो अभी पढ़ा है वो ही पूरा के पूरा है, देयर इज नथिंग न्यू। ओके, यहाँ पर एक क्विक टेबल दी हुई है कि किसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या नहीं है। तो प्रोपोजिशन ऑल SSP विच इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव A proposition only S is distributed. No SSP E proposition universal negative S and P both are distributed. Some SSP I proposition particular affirmative neither are distributed. Some S is not P O proposition particular negative only P is distributed. तो यहाँ पर अगर हम इसकी एक टेबल बनाएं बहुत क्विकली,
ठीक है। A, E, I, O, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना, एन जो है वो ION का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ओनली S इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट P। A प्रोपोजिशन में, E प्रोपोजिशन में बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, I प्रोपोजिशन में नन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, O प्रोपोजिशन में ओनली P इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये टेबल आप अगर लर्न कर लेंगे बहुत क्विकली आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। ओके, जस्ट क्विकली मेक दिस टेबल, तो आपका बहुत चीज़ें एक साथ में क्लियर हो जाएगी। Now let's do the exercises. I hope all of this is clear. Quality, quantity, distribution, बहुत easy topics है ये, एक ही बार में आ जाएंगे। Very quickly let's do the exercises. यहाँ पर अब हम exercises कर रहे हैं। What is the question saying? Identify the subject and predicate terms and name the form of each of the following proposition. First, some historians are extremely gifted writers whose works read like first-rate novels. अब देखिए इसमें जो है some है तो मतलब या तो I है या O proposition है। अब क्योंकि affirm कर रहा है इसमें not का यूज नहीं है तो this is I proposition. I proposition which is particular affirmative. इसमें quantifier is some, subject is historians। अब देखिए R यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था copula है तो historians, copula is R and predicate is extremely gifted writers whose works read like first rate novels। जब हम subject and predicate की बात करते हैं it is not necessary कि वो एक ही word होगा। ये देखिए यहाँ पे R के बाद पूरा के पूरा जो है वो predicate ही है। ओके, आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं ताकि सारे के सारे को सॉल्व कर पाए। सेकेंड वाला वेरी क्विकली सॉल्व करते हैं। नो एथलीट्स हु हैव एवर एक्सेप्टेड पे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स आर एमेच्योर्स। नो है मतलब सीधे पता चल गया ई विच इज यूनिवर्सल नेगेटिव। यहाँ पर क्वांटिफायर हमारा हो गया नो, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो आर है, नो डॉग सॉरी नो एथलीट्स हु हैव एवर एक्सपेक्टेड पे, ओके एक ही आर है, सॉरी मैं थर्ड वाले पे चली गई थी गलती से। एथलीट्स हु हैव एवर एक्सेप्टेड पे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कॉपुला हो गया आर, प्रेडिकेट हो गया एमेच्योर्स। Third proposition is again AE, which is universal negative, quantifier is no, मैंने कुछ गलत लिख दिया, no, subject। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हम बात कर रहे हैं नो डॉग्स दैट आर विदाउट पेडिग्रीज आर कैंडिडेट्स फॉर ब्लू रिबन्स। यहाँ पे तो दो आर आ गए, क्या दोनों कॉपुला नहीं हो सकते? दो कॉपुला तो नहीं सकते क्योंकि दो कॉपुला हो जाएंगे तो क्या ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, नो। तो देखिए डॉग्स दैट आर विदाउट पेडिग्रीज, तो ये वाला जो आर है वो सब्जेक्ट का ही पार्ट है, तो ये चीज हमें इजीली समझ में आ जाती है। डॉग्स दैट आर
without pedigrees. Copula is R, which is the second wala R, and the predicate is candidates for blue ribbon in official dog shows sponsored by the American Kennel Club. अब देखिए मैं यहाँ पर पूरा के पूरा लिख रही हूँ, दैट मीन्स आपको भी पूरा लिखना है. अगर आप ऐसा करेंगे जैसे यहाँ पर, या अगर आपने ऐसा करा कि आपने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा तो वो आंसर गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स कटेंगे. इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, आपको पूरा के पूरा लिखना पड़ेगा. अगर आप पूरा नहीं लिखेंगे कि बस आपने लिख दिया जैसे प्रेडिकेट में कैंडिडेट्स फॉर ब्लू रिबन्स एंड डॉट डॉट डॉट, इट इज़ रॉन्ग, सिंपल मार्क्स सीधे कट जाएंगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट, आपको पूरा के पूरा उसमें लिखना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर आई वाज ट्राइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज. 1 2 3 हो गया है. लेट्स मूव ऑन. 1 2 3 आई होप आपने पढ़ लिया है. लेट्स मूव ऑन टू 4 5 6. फोर्थ वाला ऑल सैटेलाइट्स. देखिए पहला वर्ड पढ़ा, समझ में आ गया. ए प्रोपोजिशन है which is universal, affirmative, quantifier is all, subject is satellites that are currently in orbit less than 10,000 miles high. Copula is R. देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर केस में बाद वाला ही copula होगा, ठीक है. Predicate is very delicate devices that cost many thousands of dollars to मैन्युफैक्चर. ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा. यहाँ पे हमें जल्दी करना है, थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ. देखिए हाईलाइट करना विल बी मच ईजियर. तो हम सबसे पहले येलो से शुरू करते हैं. जो जो येलो से हाईलाइटेड है, यार क्वांटिफायर प्लीज़ ऐसे मत करिएगा कि आप एक साथ पूरा कर रहे हैं, बट यहाँ पर बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, सो आई हैव टू डू इट लाइक दिस. पहला वर्ड तो इज अ क्वांटिफायर, दिस इज तो मतलब पक्का पक्का. ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट पे. पहले का सब्जेक्ट हमने देख लिया इज हिस्टोरियंस. सेकंड में सब्जेक्ट इज दिस. थर्ड में सब्जेक्ट इज दिस. फोर्थ में सब्जेक्ट इज दिस. फिफ्थ, members of families that are rich and famous are not persons of either wealth of ये, तो फिफ्थ में दिस. सिक्स में पेंटिंग्स हु आर यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एंड आर नॉट वर्क्स ऑफ, तो फिफ्थ में सिक्स्थ में दिस. ओके, हियर एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे हमारे पास तीन है. पेंटिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिस्ट हु आर यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एज मास्टर्स आर नॉट वर्क्स ऑफ जेन्युइन मेरिट दैट ईदर आर और डिजर्व टू बी प्रिजर्व. यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला है दैट इज द कॉपुला, क्योंकि जो थर्ड वाला आर है वो प्रेडिकेट का पार्ट है. ईदर आर और डिजर्व, वो यहाँ जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे एज अ वर्ब काम कर रहा है. सेवेंथ में दिस इज द प्रेडिकेट, आई एम सॉरी सब्जेक्ट. एट्थ में दिस इज द सब्जेक्ट. नाइन्थ में दिस इज द सब्जेक्ट. एंड टेंथ में this is the subject. Let's move to the copula now. Copula, first में this is the copula. Okay, ये color थोड़ा सा similar हो रहा है, तो let's take a different color.
ठीक है, लेट्स डील विद द प्रेडिकेट। अब बाकी बचा हुआ पार्ट जो है ऑटोमेटिकली इज द होल इज द प्रेडिकेट, तो देयर इज नथिंग टू गेस, ये पूरा के पूरा प्रेडिकेट ही है। ओके, तो आई थिंक वैसे प्रेडिकेट को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, राइट? क्योंकि बचा हुआ पूरा इस प्रेडिकेट, तो ज़्यादा ही कलरफुल हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत क्विकली हम चलिए फटाफट से इसका वो देख लेते हैं। दिस वन इज सम हिस्टोरियंस तो आई प्रोपोजिशन, ये एक मिनट, हम यहाँ तक कर चुके थे, वी हैड डन टिल 4th ऑलरेडी, 4th तक कर लिया था। 5th पे देखते हैं, सम मेंबर्स दैट आर रिच आर नॉट पर्सन्स, नॉट की बात हो रही है, तो दिस इज ओ प्रोपोजिशन which is particular negative। 6th की बात हो रही है, तो 6th में are not works, again O proposition, which is particular negative। देखिए, जब भी लिखिए पूरा पूरा लिखना प्लीज, ऐसे नहीं करना है हमें कि सिर्फ ओ लिख दिया, ये लिख दिया, नो, दैट डज नॉट वर्क, वी हैव टू राइट इट फुल। ऑल है तो बहुत क्लियरली ए ही है, दिस इज अगेन आई, क्योंकि सम है बट इसमें नॉट नहीं है, तो दिस इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। इन दिस वन ये ए ओ, ये जो पूरा है ना, प्लीज कैपिटल में लिखिएगा ना, आई टेक केयर, मैं कैपिटल में लिखूंगी। दिस इज ओ विच इज पर्टिकुलर नेगेटिव, एंड देन द 10th वन इज ई विच इज यूनिवर्सल नेगेटिव। तो जैसे मैंने आपको 1 2 3 4 5 करके बताया था ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आपको आंसर वैसे के वैसे ही लिखना है। यहाँ पर हमने टाइम की कमी होते हुए ये ऐसा करा है, प्लीज डोंट डू दिस। ओके, सो ये हमारा पूरा हो गया है। जैसे मैंने 1 2 3 और 4 आपको आंसर लिख के बताया था, दैट इज द ओनली वे जिसमें आपको करना है, क्योंकि अगर आप उस तरीके से नहीं कटेंगे देन यू मार्क्स नहीं मिल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। तो लेट्स क्लियर दिस आउट वेरी क्विकली, पूरा के पूरा, एंड लेट्स मूव ऑन देन। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज पे। देखिए, यहाँ पर अगेन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें अभी के लिए जस्ट टू सेव टाइम, देखिए मैं आपको 1 करके बता देती हूँ कैसे करना है, बट उसके बाद आपको सब कैसे करना है वो, मतलब आपको सारे के सारे ऐसे ही करना है, लेकिन अभी हम क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो शॉर्ट में उसको करेंगे। सम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, सम है तो मतलब आई या ओ होगा। विल बी सैडली डिसअपॉइंटेड पीपल, तो विल बी है, नॉट नहीं है, तो इट इज आई प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर affirmative। The quantifier, whether the question asks or not, you have to write this. Quality is negative, quantity is particular, quality, quantity, quantifier, subject is presidential candidates। देखिए यहाँ पे the question is not asking me to identify the copula, subject, predicate, quantifier, but whether the question asks or not you have to। देखिए आपको पता है ना पहले से, we already know
हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये एक्सरसाइज करें, मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोपोजिशन का नाम, आई, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर फॉर्मेटिव, ये सब हमें पता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉपीलेस सब पता है, तो सब लिख दो. 2-4 वर्ड्स एक्स्ट्रा है बट ये लिख देने से विल बी बेस्ट, यानी हमें लिखना ही है. डिसअपॉइंटेड पीपल. ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन. अब याद कर लीजिए, आई प्रोपोजिशन में नीदर एस नॉर पी, सो नीदर द सब्जेक्ट. तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पूछा है. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ये देखिए यहाँ पे ये जैसे करा हुआ है, आपको पूरा के पूरा ऑल क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, नोटबुक बनाइए, लिखिए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए. आपको पूरा के पूरा इसी तरीके से लिखना है, सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है. एंड एग्जाम में भी जब आए तो दिस इज द ओनली वे जैसे आप आंसर्स लिखेंगे. ओके, दिस इज द ओनली वे. अब आप यहाँ पे ये 1 देख लीजिए, इसका फॉर्मेट मैं नहीं हटाती हूँ, बट यहाँ पर वेरी क्विकली एक आपके लिए काम कर सकते हैं, हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर तो 1 तो हमने कर दिया है, ये 1 to 10 है. यहाँ पे बहुत क्विकली हम डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. एस, ओके, एस पी तो ए ई आई ओ. टेबल ड्रॉ कर लीजिए. एस नॉट पी, यहाँ पर ई में दोनों, आई में दोनों नहीं, एंड इसमें इसका क्रॉस, इसका टिक. तो ये टेबल ड्रॉ कर लिया. अब फटाफट से आप इसमें से ये आप जैसे आता है ना, ये टेबल पहले ही पीछे ड्रॉ कर सकते हैं हम, एंड क्विकली बहुत जल्दी फिर हम इसके आंसर्स हम ढूंढ सकते हैं. एंड बहुत जल्दी से सभी, जैसे कि ये 2-3 गए थे. ए है ऑल दोस, मतलब ए प्रोपोजिशन, मतलब सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज नॉट. सम रिसेंटली आर डिफरेंट, वर नॉट, तो ओ प्रोपोजिशन, तो ओ प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट इज नॉट बट सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इस तरीके से, लेकिन आपके आंसर लिखने का फॉर्मेट शुड बी दिस. पूरा आंसर ही लिखना है प्लीज, सिर्फ ये नहीं लिखना है. भले ही उसमें देखिए क्वालिटी और क्वांटिटी पूछी, लेकिन आपको क्वांटिफायर भी लिखना है, कॉपुला भी लिखना है, सब्जेक्ट भी लिखना है, प्रेडिकेट भी लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है, और प्रोपोजिशन का नेम भी लिखना है, एंड टाइप भी लिखना है. सो इफ यू डू दिस, बॉस मार्क्स गारंटीड है. एंड हमें कॉन्क्रीट मार्क्स चाहिए एग्जाम में. समझना तो है ही सही, बट साथ ही में वी हैव टू स्कोर वेल ऑल्सो. तो ये हमारा विद दिस पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज ओवर. अब नेक्स्ट वाले से हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम स्टार्ट करेंगे. मैं मेरे चैनल पे उसके वीडियोस डालूंगी, द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.